Hey, Assalamu alaikum. This is Abdullah. In this video, we are starting Python crash course after the some introduction of Python. So, as we all know, Python is the world fastest growing programming language and getting so much popularity in all over the world. और इसकी यही वजह है कि इसे ना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बल्कि मैथमेटिशियंस, डाटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स एंड इवन नेटवर्क इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। पाइथन इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसीलिए इसको समझना सीखना आसान है और तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। बट हियर द क्वेश्चन इज व्हाई ओनली पाइथन? सो आई हैव 6 रीजंस फॉर दैट। द फर्स्ट रीजन इज Python can solve complex problems in less time with fewer lines of code because Python has a very short and powerful syntax। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसा कि गूगल, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। सो वी हैव अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड और मैं इसके फर्स्ट 3 लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, एच ई एंड एल। So this is how we do in C hash, and this is how we do in JavaScript, and this is how we do in Python. See how clean and shortest syntax of Python is. So the reason 2 is Python is multi-purpose. हम Python को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं and Python also have a wide range of jobs. और jobs में हमारे पास data analysis, artificial intelligence or machine learning, desktop applications, mobile applications, web applications, software testing, and even hacking. Here, is, here is about Python salary. According to Indeed.com, in year 2020, Python developer has a salary of $1,20,000 per year. Here are few more reasons about Python popularity. Python is high level language. It's mean we don't have to worry about data management. Python has a huge community. अगर आप प्रोग्रामिंग करते हुए कहीं भी स्टक हो जाते हैं then there is always someone to help you. Python is cross platform. It's mean we can use Python on Windows, Linux and even on Mac without any problem. Python has a large ecosystem of libraries, frameworks and tools. अगर आप कोई भी Python में काम करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे किसी ने कुछ देर पहले ही वो काम किया हो। और इसकी वजह यही है कि Python को 22 years of experience हो चुका है। Python has two versions, Python 2, which was a legacy version. It has some problems. That's why that was in use until 2020. Now Python has a newer version called Python 3 and it is for the future. And in this tutorial, we are gonna use Python 3. So here is the agenda for this tutorial. We will learn variables, receiving input, type conversion, strings, arithmetic operators, comparison operator, logical operator, if statement, while loop, lists, for loops, range function, and tuples. So let's move to install the Python in our PC. So let's open up the browser and head over to python.org. In the download section, you will see the current version of Python. So the current version is 3.8.5. चांसेस हैं कि फ्यूचर में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मे बी पाइथन का वर्जन जो है अपडेट हो चुका हो, लेकिन डोंट वरी, आवर स्टफ विल कंपैटिबल विद दैट वर्जन. So click on Python 3.8.5. Python has been started downloading and now it has been downloaded. So open it up. अगर आप विंडोज पे हैं तो यहाँ पे ये चेक बटन आप देखेंगे, इसको क्लिक करना मत भूलिएगा, अदरवाइज यू विल फेस many problems regarding to path. So now click on install now. अब Python हमारी इंस्टॉल हो रही है, तो ये Python हमारी इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली. So just close it.
minimize the browser and हम ओपन करेंगे command prompt cmd to see if python is installed successfully. For that you write here command python and click enter. So you can see python 3.8.5 is successfully installed on your pc. So now we write an expression here, 3 plus 3, hit enter. We get the answer 6. We will write one more expression, 2 greater than 3, hit enter. This is false, and if we write 2 less than 3, hit enter, it is true. False and true in python is just like yes and no in english. And the screen, this black screen you are watching here, इस ब्लैक स्क्रीन को हम पाइथन का इंटरप्रेटर कहते हैं. इट इज कॉल्ड पाइथन इंटरप्रेटर. एंड दीज लाइन्स 3+3 और 2 greater than 3 और 2 less than 3, these are called python expressions. So let's write one more expression, 2 greater than. Just hit enter. This is not a complete expression and we received an error, syntax error. जैसे ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज की, इंग्लिश, उर्दू की, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी एक ग्रामर होती है. अगर उसके मुताबिक सिंटैक्स या लाइन या एक्सप्रेशन ना राइट किया जाए, then Python will arouse an error which is called syntax error. लेकिन हम खैर इस ब्लैक स्क्रीन को अपने ट्यूटोरियल्स के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे. हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने के लिए, प्रोग्राम्स राइट करने के लिए कोड एडिटर यूज करते हैं और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम VS कोड को इस्तेमाल करेंगे. सो अगेन ओपन अप योर ब्राउजर एंड हेड ओवर टू code.visualstudio.com. यहाँ से हम VS कोड डाउनलोड करेंगे. क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर विंडोज इफ यू आर ऑन विंडोज, and if you want to download 64-bit then click on Windows 64-bit. अगर आप Mac OS या Linux यूज करना चाहते हैं तो उसका सेटअप भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. So just click on this because I am on Windows. The setup has been started downloading. So the setup has been downloaded. Just open it. Just accept the agreement and click on next. This will get installed. I have already installed, so I am not installing it again. Cancelling it, yes. Now minimizing the browser and opening the Visual Studio Code. You will see the same screen I have opened. यहाँ आके हम सबसे पहले पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे. क्लिक ऑन दिस आइकॉन एंड राइट पाइथन, हिट इंटर. पाइथन, install this. तो ये इंस्टॉल हो चुकी है. द एक्सटेंशन इज इनेबल्ड ग्लोबली. सो नाउ क्लिक ऑन दिस आइकॉन एंड ओपन फोल्डर. डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम हेलो वर्ल्ड के नाम से. हिट इंटर, सेलेक्ट फोल्डर. And now our folder is opened. Click on this icon and create a Python file app.py. Hit enter. सबसे पहले हम Python के print फंक्शन जो कि built in फंक्शन है उसको यूज करेंगे. So write print, then so these are the brackets, double quotes, or you can also write single quotes. Write hello वर्ल्ड. ये जो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है सिंगल कोट्स में, इसको हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं. हम किसी भी तरह के मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करवाते हैं. इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, या नॉर्मली टेक्सचुअल डाटा कहते हैं. किसी भी लैंग्वेज में लिखने का यही तरीका होता है कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम इसको राइट करते हैं. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन to run this code. So this code has been executed. You can see hello world has been printed here. अब कोड का फ्लो ये हुआ कि ये स्ट्रिंग पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट, उसको पास करवाई एंड प्रिंट फंक्शन का काम था उसको यहाँ पे प्रिंट करवाना, जो कि मैसेज हमारा प्रिंट हो चुका है.
अब हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स हम अपने डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में टेम्पोरली स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स डिक्लेयर एन वेरिएबल लाइक एज is equals to, then write age 20. 20 is the value and we are assigning by using this equal operator to this age. हमारी कंप्यूटर मेमोरी में 20 एक डाटा है और एज उसका लेबल है। हम 20 को एक्सेस करने के लिए एज लेबल जो है उसको इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ प्रिंट भी करवा सकते हैं। हमने एज प्रिंट मेथड में लिखा और हम इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं लिख रहे। इसकी वजह यही है कि अगर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में एज को लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट एज ही को प्रिंट करवा देगा, एज ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वी वांट द वैल्यू ऑफ एज नॉट एज। सो कंट्रोल एस टू सेव दिस एंड क्लिक ऑन दिस बटन। सो यू कैन सी 20 हैज बीन प्रिंटेड। हम एज वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। एज इज इक्वल्स टू 30। कंट्रोल एस, now click here. The value 30 has been printed now. It is just because our program runs from top to bottom. Firstly age was 20, then age changed to 30 and printed here. हमारे पास बहुत तरह के वेरिएबल्स होते हैं जैसा कि प्राइस is equals to 20 point something C90। ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। हम वेरिएबल्स में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं और इवन होल नंबर्स भी। इसके अलावा लाइक नेम इज इक्वल्स टू, नेम एक स्ट्रिंग है, सो वी राइट इन सिंगल कोट और डबल कोट हमजा। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ डाटा भी होती है जिसको हम कहते हैं बुलियन वैल्यूज। स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यूज हैं ये। जैसा कि हम समझते हैं कि हमजा यहाँ न्यू है या पुराना है, ओल्ड है। सो वी डिक्लेयर वेरिएबल नेम इज न्यू इज इक्वल्स टू फॉल्स। पाइथन केस सेंसिटिव है एंड फॉल्स एंड ट्रू आर बिल्ट इन वेरिएबल्स ऑफ पाइथन। सो फॉल्स का एफ कैपिटल ही होगा और ट्रू का टी कैपिटल ही होगा। इफ वी राइट टी स्मॉल देन ये बाकी वेरिएबल से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है, देन इट इज़ अ वेरिएबल एंड दिस इज़ अ रॉन्ग सिंटैक्स हेयर। और यू कैन सी हमने इज न्यू के दरमियान ये हमने इस अंडरस्कोर को यूज़ किया है। वो इसलिए कि अगर हम अंडरस्कोर के बगैर इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इस तरह से तो ये एरर जनरेट करेगा, और अगर हम इसको साथ साथ राइट करेंगे तो ये हमारे लिए रीडेबिलिटी में मुश्किलात होंगी। सो वी राइट अंडरस्कोर हेयर एंड लेट्स सेव इट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नाउ आई हैव एन एक्सरसाइज फॉर यू। we check in a patient named Shamas and he is 27 year old और मैं जानना चाहता हूँ कि वो और वो अनकॉन्शियस है। तो आप इन 3 लाइंस के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और उसको उस हिसाब से वैल्यू असाइन करें। स्पेंड करें 2-3 मिनट्स इस पे एंड देन कम टू माय सॉल्यूशन। तो अब मैं आपको अपना सॉल्यूशन बताता हूँ। लेट्स रिमूव दिस। सो वी हैव अ पेशेंट नेम्ड शमस। For that we will declare a variable name is equals to double quotes or single quotes Shamas. On the next line he is 27-year-old, so we will declare a variable age is equals to 27. In the next line वो होश में है, he is unconscious, वो होश में नहीं है, so is conscious is equals to false because he is not in hosh, that's why we put it false here. Thank you. अब हम बात करेंगे रिसीविंग इनपुट्स के बारे में। तो लेट्स रिमूव दिस कोड। इनपुट रिसीव करने के लिए हम पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन इनपुट यूज करेंगे। इसके लिए इसके बाद हम ब्रैकेट्स देन राइट अ मैसेज व्हाट इज योर नेम
uh, let's run this code. Executed. So see, Python terminal wants a value. I am writing here my name Abdul. Let's press enter. So code has been completed, completely executed. अब हम इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट, जैसे ही हम यहाँ वैल्यू इनपुट करेंगे, ये वैल्यू इनपुट मेथड को पास होगी और देन हम इसे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं नेम, इसको असाइन कर देगा और हम कुछ ग्रीटिंग्स लिखते हैं पर्सन के लिए. सो अगेन प्रिंट मेथड एंड राइट नेम प्लस sorry, welcome plus name. So what we are doing here, we are concatenating two strings. Abdul is also a string and welcome is also a string. So let's run this code again. Right here Abdul, press enter. See, welcome Abdul. So Abdul यहाँ से पास हुआ input method को, then assigned to this name variable, and by from the using this label name we printed this on the screen.